Hello dear students, how are you? Welcome back. ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਮ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਲ ਨਾਲ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਐਮ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਟੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੀ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਡੀਅਸ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਲ। ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲੈਂਥ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਐਲ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ m0 l1 t0 ਵਿਦ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਵੇਵਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵੇਵਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਵ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਲੈਮਡਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲੈਂਥ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਐਲ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਓਨ ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਇਟਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਫੈਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ NU, ਨਿਊ। ਨਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ n ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 1/time ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, 1/t, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ 1 ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/t। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
समय लगी गल। टी सैकेंड्स दे विच एक रोटेशन हो रही है, तो एक सैकेंड दे विच कितनी रोटेशनस होणगियां 1/t, तो इसनूं असीं फ्रीक्वेंसी कहने आ, इट्स न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, वेरी सिंपल। तो इसका फिर डिमेंशनल फॉर्मूला की बन जाएगा 1/t का, तो t की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो इसके यूनिट बन गए जी पर सैकेंड, ठीक है। तो पर सैकेंड यूनिट नूं फ्रीक्वेंसी लिए एक नवा नाम दिता जाता है हर्ट्स। हर्ट्स एक साइंटिस्ट सी, उसके नेम तो यूनिट है तो हर्ट्स HZ। एक होर सिंपल जी क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। देखो आप इसका फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट। देखो है तो स्पीड ही ना, हमें लाइट की स्पीड है, पर इसनों सिंबल इसका C है, इसनों C नाल रिप्रजेंट करते हैं। जिस तरह कोई भी स्पीड है उसनों असीं V नाल रिप्रजेंट करते हैं ना, तो इसनों C नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो की फॉर्मूला है जी, असीं कोई फॉर्मूला डिस्कस कर रहे, जस्ट दस रहे हैं कि स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड दे असीं पहले ही कर चुके हैं जी L1t-1, तो इसके यूनिट की होणगे मीटर पर सैकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की असीं वैल्यू दस चुके हैं पहला कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होंदी है 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड इन वैक्यूम। नैक्सट है जी देखो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ किसी चीज़ ਨੂੰ ड्रॉप करते हैं वो बॉडी नीचे ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सलरेशन पैदा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ स्पीड ਵੱਧਦੀ है। तो ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ है, वो ग्रैविटी करके है कि अर्थ ਨੂੰ अट्रैक्ट कर रही है आपदे वाले पासे, ठीक है। तो है तो एक्सलरेशन ही। फिर मैं अज उही फॉर्मूले डिस्कस कर रहा जी जो असीं पहला कर चुके हैं। तो इट्स एक्सलरेशन काहदे करके पैदा हो रहा है, ग्रैविटी करके। इसनूं जी नाल रिप्रजेंट करते हैं जी, स्मॉल जी नाल। नॉर्मल किसी भी बॉडी दे विच एक्सलरेशन है तो ए नाल रिप्रजेंट होंदा है, स्मॉल ए नाल, इसनूं जी नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो एक्सलरेशन है, ठीक है जी। एक्सलरेशन नूं असीं ऑलरेडी कर चुके हैं पहला डिस्कस, तो इनका फॉर्मूला बना चुके हैं L1t-2 और वी कैन राइट m0 L1t-2, तो मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो जे तुसीं पिछला लैक्चर नहीं किया तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दे रहा ताकि तुहानूं पता लगे एक्सलरेशन की चीज़ है। एंगूलर वेलोसिटी देखो जे बॉडी एक सर्कुलर मोशन दे विच है, तो फिर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा जा। एक बॉडी देखो सर्कल दे विच मूव कर रही है, तो ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक जाती है, ठीक है। ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है A to B, बट एंगल दी टर्म्स दे विच जो असी रिप्रजेंट करते हैं उसनूं एंगूलर डिसप्लेसमेंट कहते हैं। तो थीटा उसकी एंगूलर डिसप्लेसमेंट है, ठीक है। हुण थीटा किस रेट ते कवर हो रहा है उसनूं एंगूलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एंगूलर डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसनूं रिप्रजेंट करते हैं जी, इसका सिंबल है ओमेगा, ठीक है। तो इसनूं की कहा जाता जी, ओमेगा। तो ये की हुंदा जी, एंगूलर डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके यूनिट की बन गए, थीटे से देखो डिमेंशनस सीगियां m0 L0 T0, थीटे दी कोई डिमेंशनस नहीं सीगियां, ठीक है। तो ऊपर m0 L0 T0 है डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन जाएगा m0 L0 T-1। बट तुहानूं दस्सिया सी कि थीटे नूं असीं मेजर करते हैं रेडियन दे विच, तो इसके यूनिट बन गए रेडियन पर सैकेंड, ठीक है। तो देखो ये मोशन जो ना रिलेटेड है, जो स्ट्रेट लाइन च बॉडी मूव करती है तो असीं कहने जी डिसप्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिसप्लेसमेंट के नाल रिलेटेड है वेलोसिटी, इस तरीके नाल एंगूलर डिसप्लेसमेंट है तो उहदे नाल रिलेटेड है एंगूलर वेलोसिटी। तो इसनूं आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे सैकेंड यूनिट दे विच। मैं इत्थे फिर एक बार रिपीट कर रहा कि जे कोई तुहानूं डिमेंशनल फॉर्मूला समझ नहीं आता नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये डिमेंशनल फॉर्मूले सारिया फिजिकल क्वांटिटीज़ दे असीं सारी फिजिक्स दे विच डिस्कस करने हैं। नैक्सट है जी प्रैशर। प्रैशर नूं कैपिटल P दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। प्रैशर हुंदा जी फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितना फोर्स लग रहा है किन्ने एरिए ते, ठीक है। तो प्रैशर नाल रिलेटेड भी अपने को एक पूरा चैप्टर है, इसनूं आपां डिस्कस करांगे। इत्थे जस्ट डिमेंशनल फॉर्मूला बनाना जी, आपां डिमेंशनल फॉर्मूला किस तरह बनाना है ये आपां नूं समझ आनी चाहिए इत्थे। तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला हुंदा जी m1 L1 T-2,
डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होंगे L2, आप दोनों कर चुके हैं। तो ये बनेगा जी L की पावर 2 ऊपर जाके हो जाएगी L की पावर -2, L1 डिवाइडेड बाय L2, नीचे एक L रह जाएगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, M1 L -1 T -2। ठीक है, तो इसके यूनिट इतों दसे जाते हैं जी, फोर्स पर यूनिट एरिया तो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है जी पास्कल। ठीक है, पास्कल भी एक साइंटिस्ट के नेम तो है, तो इसनों पास्कल लिखा जाता है जी, PA नाल रिप्रजेंट किया जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिथे भी आएगा उसनों पास्कल कहांगे जी आप। क्लीयर है, तो जोड़े भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम तो आते हैं उन्होंने फस्ट लैटर जोड़ा वो कैपिटल होंगे, कैपिटल PA। ठीक है, तो फुल नेम के जो लिखा जाता है तो स्मॉल p नाल रिप्रजेंट होता है। तो ये भी कुछ रूल्स असी बनाए हुए हैं जी लिखन लई। ठीक है, तो इन्हों भी याद रखना है। पावर, पावर नू भी कैपिटल P दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो पावर होंदी है जी रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क किस रेट पर हो रहा है, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला असी किया है M1 L2 T -2 डिवाइड बाय टाइम इज़ T। तो इसका फॉर्मूला की बन जाएगा T -2 है, नीचे T1 है, ऊपर जाके T दी -1, -2 तो -1 हो जाएगा -3, तो T -3 इस द यूनिट। इस एक्सप्रैशन तो बन गए जी वर्क डन द यूनिट जाउल, टाइम द यूनिट सैकेंड, तो यूनिट बन जाएंगे जाउल पर सैकेंड। ठीक है, तो जाउल पर सैकेंड को असीं कहने जी वॉट। ये भी साइंटिस्ट के नेम तो है, इसनों असीं कैपिटल W के नाल रिप्रजेंट करांगे जेम्स वॉट। ठीक है, तुसीं नाम सुनिया होएगा, तो मैंने दसिया जी भी जेम्स वॉट ने की बनाया सी। ठीक है, जिस लिए ये फेमस है। नैक्सट है जी स्ट्रैस। तो स्ट्रैस लिए वैसे कोई सिंबल नहीं है, तो स्ट्रैस नूं स्ट्रैस ही लिखा जाता है। तो स्ट्रैस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, हुण तुसीं कहोगे जी फिर स्ट्रैस ते प्रैशर दे विच की डिफरेंस है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ते भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो इन्हां दे विच की डिफरेंस है जी, ये असीं एक्सप्लेन करांगे 7th यूनिट दे विच जाके। देखो असीं किहड़ा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रैस का कॉन्सैप्ट आएगा 7th यूनिट दे विच। 7th यूनिट दे विच ते असीं स्ट्रैस बारे 7th यूनिट दे विच पढ़ांगे, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर दे विच। फॉर्मूला फिर इसका उही बनेगा जी जो प्रैशर का बने। ठीक है, M1 L -1 T -2, तो यूनिट भी उही होणगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसनूं रिप्रजेंट किया जाता है पास्कल दे विच। प्लैंक्स कॉन्सटेंट, प्लैंक्स कॉन्सटेंट नूं H नाल रिप्रजेंट किया जाता है, स्मॉल h नाल। तो जे इसका फॉर्मूला देखिए तो ये एनर्जी तो फ्रिक्वेंसी के नाल एक फॉर्मूले के नाल रिलेटेड है, E = H न्यू। ये फॉर्मूला होंदा जी, E होंदी है एनर्जी, H होंदा प्लैंक्स कॉन्सटेंट, तो न्यू होंदी है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो सानू डिमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना आना चाहिए कि किस तरह फाइंड करना है। तो H किस दे इक्वल हो जाएगा, H = E/न्यू। तो E का फॉर्मूला की होएगा, E इज़ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला है M1 L2 T -2 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी दा T -1। तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला की बन जाएगा M1 L2 T -1, ऊपर जाके T +1 हो जाएगा, -2 तो +1 -1 रह जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा M1 L2 T -1। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल कई डिमेंशनल फॉर्मूले आपां नूं किसी फॉर्मूले तो फाइंड करने पैणगे, जिस तरह ये फॉर्मूला है E = H न्यू। तो प्लैंक्स कॉन्सटेंट नूं फिर असीं रिप्रजेंट कर सकते हैं जी। तो यूनिट इस दे इत्थों बन गए जी एनर्जी ते फ्रिक्वेंसी तो, एनर्जी दे जाउल, एक और क्वांटिटी कर रहे हैं जिस देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं। देखो डिमेंशनल फार्मूला किस तरह फाइंड करते हैं, एक फार्मूले नाल रिलेटेड है जिस दे विच फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिप्रजेंट कर रहे हैं। तो फोर्स नाल जी का रिलेशन है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इनू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। देखो जो तुम जी किवें फाइंड करांगे हुण, तो जी फाइंड करनी है तो जी किस दे इक्वल हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है, एफ की है जी, एफ इज फोर्स, m1 m2 मास, ए मासेस है। ठीक है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इतों असीं फॉर्मूला ईजीली फाइंड कर लांगे। एफ का फॉर्मूला फोर्स का m1 L1 T-2। ठीक है, डिस्टेंस का L का स्क्वायर हो गया जी, नीचे हो गया जी m इंटू एम, एम की पावर 2। एक m नाल एक m कैंसल हो गया, तो ऊपर जाके m की पावर बन जाएगी -1। L की पावर 1 तो 2, L की पावर 3 तो T की पावर -2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो जी आप फाइंड करांगे जिस फॉर्मूले तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इतों जी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जड़ियाँ बहुत सारिया क्वांटिटीज़ है उन्होंने फोर्स यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके यूनिट इस फॉर्मूले तो बननगे। फोर्स के यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, तो नीचे मास के किलोग्राम, तो बन जाएंगे जी पर किलोग्राम स्क्वायर। आप एक होर फॉर्मूला करते हैं जी स्ट्रेन। स्ट्रेन का भी देखो जी फुल नेम ही लिखा जाता है, इसका भी कोई प्रॉपर सिंबल नहीं यूज़ किया जाता। तो ये होंगे जी चेंज इन डिमेंशनस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमेंशनस। मतलब अगे स्ट्रेन दी टाइप्स बनती हैं कि वो लेंथ ते बेस्ड है या वॉल्यूम ते बेस्ड है, कि बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो आप एक एग्जाम्पल ले लें जिस तरह चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ के जो यूनिट होंगे वही चेंज इन लेंथ के यूनिट होंगे डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये भी बन जाएगा जी डिमेंशनलैस। वी कैन राइट इट m0 L0 T0। ठीक है, तो इसके जोड़े यूनिट्स है SI वो 9 यूनिट्स है, कोई यूनिट नहीं जी। ठीक है, जिस तरह आप पहला एंगल किया सी, एंगल वाज डिमेंशनलैस, बट उसके SI यूनिट से कि रेडियन, तो इसके SI यूनिट नहीं है। हुण देखो जी इत्थे तुहानूं जे कोई डिमेंशनल फॉर्मूले दे विच फिजिकल क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा, जिस तरह कि प्लैंक्स कॉन्सटेंट की है, ਜਾਂ यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट की है, ਜਾਂ प्रैशर का पता नहीं लगता भी की चीज़ है, तो आप इत्थे असीं इस चीज़ बारे नहीं सोचना कि आप सिर्फ इत्थे ये समझना है कि डिमेंशनल फार्मूले असीं किस तरह बना रहे हैं, कि हाउ दीज डिमेंशनल फार्मूलाज आर डिपेंडेंट ऑन बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये क्वांटिटी की जो समझ नहीं लगी तो आप सारी फिजिक्स के विच यही चीज़ां स्टडी करनी है जी। इन्हां सारियां ते आपां पूरी डिटेल दे विच स्टडी करांगे कि वट इज़ स्ट्रेन, यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट की है, प्लैंक्स कॉन्सटेंट की है। ठीक है ना, तो ये तो अपनी सारा सिलेबस है। तो देखो जी हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशनस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस, की जो असीं डिमेंशनस इत्थे बना रहे हैं क्वांटिटीज़ दियां, तो इस इन्हां फॉर्मूलेज़ नूं असीं किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, की एप्लीकेशनस है। तो ये फस्ट एप्लीकेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चैकिंग द डिमेंशनल करैक्टनेस ऑफ फार्मूला। ये सानू कोई फार्मूला दिता होएगा, असीं उस फार्मूले नूं चैक करना है कि वो डिमेंशनली करैक्ट है कि नहीं। तो जिस तरह जी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन गिवन है जी, आप एक फार्मूला गिवन है जिसकी डिमेंशनल करैक्टनेस चैक करनी है कि F इज इक्वल टू mv स्केयर डिवाइडेड बाय r, तो वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इसका की मतलब है, इसका मतलब तो जे इत्थे F है तो F फोर्स नूं रिप्रजेंट कर रहा है। ठीक है, वट इज़ F? F इज़ फॉर फोर्स, यूजुअल मीनिंग्स। M इज़ फॉर मास, V इज़ फॉर वेलोसिटी एंड R इज़ फॉर रेडियस। क्लीयर? तो ये मीनिंग होंदा जी, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो इस विच करना की होंदा जी, असीं जिहड़ा गिवन फार्मूला है उसकी लैफ्ट हैंड साइड लै लैनी है। तो अपन फार्मूला गिवन है जी F इज़ इक्वल टू mv स्केयर डिवाइडेड बाय
आर। असीं इस दी लैफ्ट हैंड साइड लैके चलना है। तो LHS दे विच फोर्स है, इसका डिमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। तो इसका डिमेंशनल फार्मूला है M1L1T-2। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड नूं असीं सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड दे विच भी सारे दे डिमेंशनल फार्मूले पुट कर देने हैं। ठीक है, M मास का डिमेंशनल फार्मूला, फिर वेलोसिटी का होंदा जी L1T-1 डिवाइडेड बाय रेडियस का होंदा जी लेंथ। इसनों सॉल्व करो तो बनेगा M पावर 1 L की पावर 1 ते 2 जी बाहरली दी अंदरली पावर है। जो इस तरह होवे जी कोई पावर होवे उसके उपर एक होर पावर आ जाए तो दोनों पावर्स आपस दे विच मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो L की पावर हो जाएगी 2, T की पावर हो जाएगी -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2। ठीक है, L की 2 नाल L कैंसल हो जाए तो ये बन जाएगा जी M1L1T-2। ठीक है, तो लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड का डिमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है। जो सेम है तो असीं इत्थे की कहांगे जी, गिवन फार्मूला इज़ डिमेंशनली करैक्ट। ठीक है जी, तो ये फार्मूला डिमेंशनली करैक्ट है। तो जे इक्वल ना होवे लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे, जे लैफ्ट हैंड साइड का फार्मूला कुछ होर बन जाए तो राइट हैंड साइड का फार्मूला कुछ होर बन जाए तो फिर आप लिखांगे जी गिवन फार्मूला इज़ डिमेंशनली इनकरैक्ट। ठीक है, जिस तरह एक होर फार्मूला करते हैं। तो हुण अपने को क्वेश्चन है जी कि फार्मूला गिवन है लैमडा इज़ इक्वल टू H डिवाइडेड बाय MV। तो असीं इस दी डिमेंशनल करैक्टनेस जो है वो चैक करनी है। तो अपन क्लीयर होना चाहिए कि वट इज़ लैमडा इज़ वेवलेंथ। आप अज किया ना। वट इज़ H इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। वट इज़ M इज़ मास। वट इज़ V इज़ वेलोसिटी। तो फिर किस तरह करांगे जी, अब लैफ्ट हैंड साइड लैके चलांगे। तो लैफ्ट हैंड साइड इज़ लैमडा वेवलेंथ, इसका डिमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे। तो इसका डिमेंशनल फार्मूला होंदा है लेंथ। ठीक है, L की पावर 1। क्लीयर, या इसनों M0L1T0 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड देखो जी की है, तो राइट हैंड साइड है जी H डिवाइडेड बाय MV। तो इन्हां दी डिमेंशनल फार्मूले पुट करांगे। H का डिमेंशनल फार्मूला असीं कीता सी जी अज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डिमेंशनल फार्मूला, इसका फार्मूला होंदा है जी M1L2T-1 डिवाइडेड बाय M का डिमेंशनल फार्मूला मास का कैपिटल M, वेलोसिटी का L1T-1। तो इसनों सॉल्व करांगे तो देखो की बनता है जी M नाल M कैंसल हो जाएगा, T की पावर माइनस नाल T की पावर -1 कैंसल हो जाएगी। ठीक है, L की पावर 2 डिवाइड बाई L की पावर 1 ये बन जाएगा जी L। ठीक है, L पावर 1 बचेगा, इत्थे भी L पावर 1 है। सो लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन फार्मूला इज़ डिमेंशनली करैक्ट। तुहाडे लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि MGH इज़ इक्वल टू 1/2 MV स्केयर। ठीक है, इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये डिमेंशनली करैक्ट है या इनकरैक्ट है। M इज़ मास, G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H इज़ हाइट नॉट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हेयर, M इज़ मास, V इज़ वेलोसिटी। ओके, चैक दिस फार्मूला। हुण जो तुसीं इस फार्मूले को करोगे जी तो इहदे विच एक नवीं चीज़ आ रही है, इट इज़ 1/2। तो 1/2 जो तुसीं राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है तो 1/2 लीव कर देना जी। जो इसके डिमेंशन फार्मूले पुट करने हैं तो 1/2 छड़ देना है, क्योंकि 1/2 एक नंबर है। ठीक है, तो डिमेंशन लैस है, इसदियाँ कोई डिमेंशनस नहीं है। ठीक है, तो इसदियाँ डिमेंशनस पुट नहीं करने हैं। तो अपना नैक्सट टॉपिक है जी प्रिंसीपल ऑफ होमोजीनिटी। तो प्रिंसीपल ऑफ होमोजीनिटी बहुत ही सिंपल बेसिक प्रिंसीपल है, जिहड़ा आपां नूं दसदा है कि ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड, कि इक्को जिहियां फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं ही असीं ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि असीं लेंथ दे विच लेंथ ऐड कर सकते हैं कि लेंथ प्लस लेंथ आंसर विल बी
तो लेंथ दे विच लेंथ ऐड करांगे तो आंसर विल बी लेंथ। ठीक है, करेक्ट। और यू कैन से L प्लस L इज इक्वल टू L। तो इत्थे नहीं कर देना जी कि L प्लस L इज इक्वल टू 2L। ठीक है, असीं इत्थे मैथेमैटिकली इन्हों ऐड नहीं कर रहे, असीं दस रहे हैं कि लेंथ दे विच लेंथ ऐड करांगे तो आंसर विल बी लेंथ। सिमिलरली जे मास दे विच मास ऐड करांगे, देखो मास दे विच जे असीं मास ऐड करांगे तो आंसर विल बी मास। ठीक है, तो जे असीं लेंथ दे विच टाइम ऐड करांगे, हुण सोचो जी, तो लेंथ प्लस टाइम तो की आंसर आएगा। ठीक है, कि ये हो सकता है कि लेंथ दे विच असीं टाइम ऐड कर दीए, तो ये पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है जी, नॉट वैलिड। तो असीं लेंथ दे विच टाइम ऐड नहीं कर सकते, या किसी भी दो अलग अलग तरह दी फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं ऐड नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस दे विच डिस्टेंस ऐड होएगा, फोर्स दे विच फोर्स ऐड होएगी। ठीक है, या सबट्रैक्ट होएगी। क्लीयर है? तो दो अलग अलग तरह दी असीं क्वांटिटीज़ नूं ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वेरी सिंपल प्रिंसीपल। ठीक है जी, तो इसनूं एक एग्जाम्पल दे नाल एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस सी। तो आपको एक फॉर्मूला गिवन है जी, इन द गिवन रिलेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, वेयर v इज़ वेलोसिटी एंड t इज़ टाइम। तो आप दसनी है कि a तो b दी डिमेंशनस की होणगियां। ठीक है, तो हुण फॉर्मूला की है जी, देखो बड़ा ईजी है। देखो v इज़ इक्वल टू a प्लस बी टी, ये गिवन है कि v इज़ वेलोसिटी। ठीक है, हुण ध्यान नाल समझो कि जो v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेलोसिटी दे ही इक्वल होएगी। इहदा मतलब आ सारी टर्म जिहड़ी है a प्लस बी टी, ये की होएगी, ये सारी टर्म भी वेलोसिटी होएगी। ठीक है जी, जे ये सारी टर्म वेलोसिटी है तो इहदे विच टू टर्म्स का सम है a ते बी टी। इसका मतलब जिहड़ी a है इट्स आल्सो वेलोसिटी। ठीक है, एंड बी टी इज़ ऑल्सो वेलोसिटी। बी टी देखो, बी तो टी दी प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है। ठीक है, तो ये दोनों की प्रोडक्ट जी है वेलोसिटी है, ये एक टर्म है। ठीक है, आप एडिड एंड सबट्रैक्टेड की गल की सी, तो इन्हें कहा जी ए बी टी सारे नहीं, ए एक टर्म है, बी टी एक अलग टर्म है। तो ए जो वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की होएगा, एल दी पावर 1 तो टी दी पावर -1, और वी कैन राइट m0 L1 T -1। ठीक है, बी टी जो वेलोसिटी है तो बी टी का फॉर्मूला की होएगा, तो बी टी का फॉर्मूला हो जाएगा L1 T -1। हुण असीं बी का फाइंड करना है जी, इसका मतलब बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो, कैपिटल टी। देखो टी टाइम है, ये टी इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो असीं डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर देने, बाकी सारे दे जिंदा फाइंड करना उन्हें छड्ड देना है जी। तो L1 T -1, तो टी उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बी टी की बन जाएगा, बी की बन जाएगा जी L1 T -1 डिवाइडेड बाई टी। टी दी पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ऊपर टी दी -2 हो जाएगी, तो बी दी वैल्यू आ जाएगी L1 T -2। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल असीं डायमेंशनल फार्मूले जिहड़े आ वो फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन, कि जे सानूं कोई एक डायमेंशनल फार्मूला दिता होवे जां दस्सिया होवे तां प्रिंसीपल ऑफ होमोजीनिटी नूं यूज़ करके, तो प्रिंसीपल ऑफ होमोजीनिटी नहीं दस्सिया ना आपां नूं कि जे v वेलोसिटी है तो a प्लस बी टी इज़ ऑल्सो वेलोसिटी, तो जे a प्लस बी टी वेलोसिटी है इसका मतलब a भी वेलोसिटी है तो बी टी भी वेलोसिटी है। क्लीयर? तो एक एग्जाम्पल मैं तुहाडे वास्ते लिख रहा जी, तुसीं सॉल्व करनी है। ठीक है जी, हुण अपने कोले नैक्सट क्वेश्चन है कि एक फॉर्मूला की बना है x इज़ इक्वल टू ए टी स्केयर प्लस बी, जिंदे विच x डिस्टेंस है तो t टाइम है। तो आप इहदे विच की करना है जी, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है a ते b दा। ठीक है, ये तुसीं अपने आप ट्राई करके देखना है, तुसीं इसनूं सॉल्व करना है तो ए ते बी दी डायमेंशनस फाइंड करनी है। तो आई होप कि तुहानूं अज दा टॉपिक जिहड़ा वो समझ लग गया होएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी in the comment section. So all the best, have a nice day.